A very good morning to all students. Once again we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. In the last few videos we discussed the chapter number 13 depreciation. Now we will move to the one of the important chapter of class 11th accountancy, that is provision and reserve. So let's we move to the new chapter of class 11th accountancy, that is a chapter number 14, provision and reserve. So in this chapter we have to develop a understanding regarding what is reserve, what is provision, what are the feature of reserve, what are the feature of provision, as well as what are the difference between the provision and reserve, as well as the different kinds of provisions and reserve. So let's we start the today's topic, that is a new chapter of class 11th accountancy, that is chapter number 14, provision and reserve. So the today's topic of this video, that is chapter number 14, provision and reserve. Okay, so first of all we discussed, as you can see in the screen, that is what is provision. So what is provision? Provision means the amount set aside for the purpose of providing for any known liability or uncertain losses or expenses. It means provision क्या है? एक ऐसी अमाउंट होती है जिसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी. इट मीन्स प्रोविजन मीन्स कोई भी ऐसी अमाउंट, एनी अमाउंट विच आर सेट असाइड. सेट असाइड मतलब जिसे हम कलेक्ट करके रखते हैं, एनी अमाउंट कलेक्ट करके रखना. फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस इज फॉर मीटिंग अ नोन लाइबिलिटी, यानी उसकी लाइबिलिटी हमें पता होती है. फॉर द नोन लाइबिलिटी as well as uncertain loss or expense. Uncertain loss. Liability is clear, but the amount of loss is not clear. It means what is a provision? Provision means any amount set aside for the purpose of providing for any known liability or uncertain loss or expense. In other sense, which can be said by us, that is amount of which cannot be ascertained with certainty is referred to as provision. यानी provision क्या है? Provision means any amount set aside. Standard definition of provision is any amount set aside for the purpose of known liability and uncertain amount of loss. यानी हमें liability तो पता है, बट उस लाइबिलिटी या लॉस की अमाउंट सर्टेन नहीं होती है. ओके, सो व्हाट इज प्रोविजन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोविजन, सो यू कैन इजीली सी दैट अमाउंट सेट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग uncertain, providing known liability whose amount cannot be ascertained. It is a very standard definition of the provision which are useful for you for any theoretical problem. So what is provision? कोई भी ऐसी अमाउंट जिसे हम कलेक्ट करके रखते हैं, किस पर्पस के लिए? नोन लाइबिलिटी के लिए, यानी लाइबिलिटी इज फिक्स्ड बट अमाउंट जो होती है उसकी सर्टेन नहीं होती. इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज, the next point is certain expenses and losses which are related to the current accounting period but the amount of which is not certain at they are not is incurred.
ओके, सो मैं इस पूरी टॉपिक को पहले अच्छे से समझा देता हूँ आपको. So you can see that what is provision? Provision means amount set aside for the purpose of providing known liability whose amount cannot be ascertained. यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जिसे हम कलेक्ट करके रखते हैं जिसका पर्पस क्या होता है, किसी नोन लाइबिलिटी को बियर करना. लाइबिलिटी फिक्स्ड होती है बट उस लाइबिलिटी की अमाउंट कितनी होती है ये डिसाइड नहीं होती. As well as the next para says that certain expenses and losses which are related to the current accounting period but the amount of which is not certain as they are not yet incurred. मतलब कुछ एक्सपेंस या लॉसेस ऐसे होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं बट उनकी अमाउंट निकालना पॉसिबिलिटी नहीं होती है. यानी इस साल हमें कितना लॉस होगा, हमें लॉस तो होगा, हमें एक्सपेंस भी होगा बट उसकी अमाउंट निकालना पॉसिबिलिटी नहीं होती. Therefore, it becomes to necessity to make provision for such item for asserting the true profit and loss according to the principle of prudence and conservatism. You know very well what is conservatism concept. इस पे हम लोग आगे बात करेंगे. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए बट वी हैव टू फोकस ऑन द एंटीसिपेटेड लॉसेस. यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई भी प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको कोई एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, यानी कोई लॉस जो फ्यूचर में दिख रहा है कि हाँ लॉस हो सकता है, उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है. सो व्हाट इज प्रोविजन? सिंपल सी बात, प्रोविजन का मतलब एक ऐसे अमाउंट के कलेक्शन से होता है जिसकी लाइबिलिटी तो फिक्स्ड होती है, ये पता है कि इस कारण से आपको लॉस होगा बट कितना लॉस होगा ये नहीं पता होता है. और जनरली ये लॉसेस, ये लाइबिलिटी करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं बट आप इसके अमाउंट डिसाइड नहीं कर सकते. और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहता है कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भैया आपको लॉसेस के लिए प्रोविजन करना होगा. यानी आपको पता है कि फ्यूचर में आपको इस साल लॉस होने वाला है, लेकिन अगर आप लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या आप सेफ हैं, क्या आप अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं? नहीं. सो इसके लिए प्रोविजन बनाना भी ज़रूरी होता है. और नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, तो उसमें करंट ईयर की रेवेन्यूज और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को शो कराना भी जरूरी होता है. सो ड्यू टू द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ड्यू टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है, वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोविजन. प्रोविजन मीन्स द अमाउंट सेट असाइड फॉर द पर्पज ऑफ नॉन लायबिलिटी बट हुज अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन. सो कुछ एग्जाम्पल भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. दैट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. इन सब पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स वी टेक द फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट related to the provision. You can see that the various example given on your screen like a provision for taxation. हम टैक्सेशन के लिए, टैक्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं. वाई? यू नो वेरी वेल, आपको हर साल टैक्स भरना है. इट मीन्स टैक्स इज अ नोन लाइबिलिटी फॉर द करेंट ईयर बट आपको कितना टैक्स भरना है वो डिसाइड नहीं है. वो डिसाइड कब होगी? एट द एंड ऑफ द ईयर. बट आपको प्रोविजन तो बनाना है. सो यू कैन सी दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ example of, it is the greatest example of the provision because the liability is fixed but amount cannot be ascertained. One more example, that is a provision for depreciation. If you are talking about the provision for depreciation, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, आप एवरी ईयर एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो. यू नो वेरी वेल, डेप्रीशिएशन इज अ नोन लाइबिलिटी कि आपको एवरी ईयर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है. बट आपको कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू. कितनी सारे फैक्टर्स है जो किसी भी एसेट्स की डेप्रीशिएशन को इफेक्ट करते हैं. सो इसकी एक्चुअल अमाउंट, करेक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ द प्रोविजन. सो यू कैन सी दैट व्हाई वी कॉल द प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एज अ प्रोविजन. व्हाई वी कॉल द प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एज अ प्रोविजन. आपको याद होगा हम लोग डेप्रीशिएशन अकाउंट की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाते थे लास्ट चैप्टर में. सो क्यों बनाते थे? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन. प्रोविजन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट सेट असाइड. कोई भी पैसा अगर हम जुटा के रखते हैं, किस लिए जुटा के रखते हैं?
जिसकी लायबिलिटी फिक्स्ड होती है कि हमें करना है, लेकिन उसके अमाउंट डिसाइड नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट डिसाइड नहीं है तो हम लायबिलिटी को भूल जाएं। हमको नहीं पता है कि फ्यूचर में हमें 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, 3 लाख देना है, हमें नहीं पता, लेकिन पता है कि मुझे देना है। जैसे यू नो वेरी वेल एवरी ईयर आपको टैक्स देना है, एवरी ईयर आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है ये फ्यूचर इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, कुछ टर्म्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप टैक्स और डेप्रीशिएशन के लिए प्रोविजन ना बनाएं, पैसा ना जुटाएं। बेसिकली ये कहने का मतलब है। जैसे यू नो वेरी वेल आपके फादर्स एंड मदर्स, इट मीन्स पेरेंट्स अगर कहें, आप उनको पता है कि आपके एजुकेशन के लिए उन्हें पैसा जुटा के रखना है, ये नहीं पता है कितना लगेगा। इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल आप MBA कर सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हो, यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप फ्यूचर में क्या करोगे ये अभी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो करोगे, जिसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की। फादर अभी से क्या करेंगे, पेरेंट्स अभी से क्या करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। वो प्रोविज़न मीन्स पैसा जुटाएंगे, कलेक्ट करेंगे। क्यों कलेक्ट करेंगे? टू मीट अ नोन लायबिलिटी। पता है प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन बनाएंगे, घर पे ही बनता है, बट कितना बना रहे हैं ये नहीं, हो सकता है वो अमाउंट बहुत सफिशिएंट हो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए, और ये भी हो सकता है वो अमाउंट आपके एक्सपेक्टेशन या आपके लिए सफिशिएंट ना हो। ओके, so now we will take one more example related to the provision, that is provision for doubtful debts. And this provision is made against the debtor. Whose debtor? पहले तो आप ये समझ लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किसके अगेंस्ट बनता है? इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट द डेटर। एंड हु इज डेटर? यू नो वेरी वेल, डेटर मतलब जिसको हम उधार पैसा देते हैं। सपोज मेरे सामने कोई एक बंदा खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है मेरे सामने, जिसको मैंने 1 लाख रुपए का उधार सामान दे दिया, क्रेडिट पे गुड्स दे दिया, ये क्या बन गया? मेरा डेटर। यू नो वेरी वेल हुज डेटर? द पर्सन टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, द पर्सन टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने 1 लाख रुपए का इसको सामान उधार पे दे दिया, ये मेरा बन गया डेटर। अब डेटर पे क्या बनाते हैं? प्रोविजन। क्यों बनाते हैं? डाउटफुल डेब्ट्स। जिसको मैंने 1 लाख रुपए दिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए पूरा दे, ये भी तो अनसर्टेन है, मेरे ऊपर रिस्क है। हो सकता है वो मुझे पूरा पैसा दे के चला जाए, हो सकता है वो मुझे पैसा ना दे। अगर वो पैसा दे दिया अच्छी बात है, नहीं देता है, इन केस ऑफ द डाउटफुल डेब्ट्स, हमें लायबिलिटी तो पता है, हमको ये नहीं पता है फ्यूचर में वो मुझे कितना पैसा देगा कितना नहीं देगा। इट मीन्स कितना पैसा बैड डेब्ट्स होगा। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स prepared against the doubtful debts or bad debts of debtor. So in future we can easily write off the bad debts created by the debtor. यानी जो डेटर्स बैड डेब्ट्स क्रिएट करते हैं, पूरा पैसा पे नहीं करते, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें ऐसा ना हो कि घबराने की जरूरत पड़े, क्योंकि यू नो वेरी वेल फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द वेरी important example related to provision, and you can see that all the example are denote the most important feature of the provision, that is known liability, but those amount cannot be certain. So now let's we take the few feature of the provision. The first feature of provision is it is created to meet a known liability. So it is fully correct, you know very well कि प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं? प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर टू मीट अ नोन लायबिलिटी। जैसे आपने एग्जांपल में देखा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो, या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो, इसमें लायबिलिटी फिक्स्ड होती है कि हमें प्रोविजन किसके अगेंस्ट बनाना है? टैक्स के लिए बनाना है, डेप्रीशिएशन के लिए बनाना है, और डेटर्स के बैड डेब्ट्स के लिए बनाना है। Number two is that provision is charged to profit and loss account. So you can see that provision को हम profit and loss account में charge के दिखाते हैं. What is a charge? Charge means it is a compulsory expenses. It means अगर आपके पास किसी साल profit हो या ना हो, लेकिन आपको provision बनाना तो compulsory होता है. यानी provision is a charge, not appropriation. ये appropriation और charge में क्या difference होता है? Provision हम तभी बनाते हैं चाहे profit हो या ना हो. प्रोविज़न बनाना कंपलसरी होता है, टैक्स पे करना कंपलसरी होता है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना कंपलसरी होता है,
डेटर्स के बैड डेब्ट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल डेटर्स बैड डेब्ट्स करेंगे ही करेंगे, चाहे हम लॉस मेक करें अपने बिजनेस में, चाहे प्रॉफिट मेक करें। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी, चाहे हम प्रॉफिट अर्न करें या ना करें। बट टैक्सेशन में है कि टैक्स आप तभी पे करते हो जब आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट पता कब चलेगा, जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी बुक क्लोज करोगे, तब पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ रहा है कि लॉस हो रहा है। सो यू कैन सी दैट प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है, सो इट इज कॉल्ड प्रोविजन इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, the liability is known but the amount of such liability cannot be ascertained with certainty। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि liability प्रोविजन के रिगार्डिंग जो लाइबिलिटी होती है वो पता होती है। प्रोविजन मीन्स जिसकी लाइबिलिटी टू डिसाइड है, बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी असर्टेन, यानी उसकी कितनी लाइबिलिटी है ये सर्टेन नहीं होती। सो यू कैन सी दैट प्रोविजन की लाइबिलिटी श्योर होती है, बट उस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपको कितना पे करना है, इट इज नॉट फिक्स्ड। एंड नंबर 4 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोविजन, दैट इज क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इंश्योर प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर कोई भी कंपनी रेगुलरली प्रोविजन बनाती है तो वो दो कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एंड नंबर 2 इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए उसे करंट ईयर के रेवेन्यूज एंड करंट ईयर के एक्सपेंस को मैच करना होता है। अगर हम प्रोविजन नहीं बनाते, सो ड्यू टू द नॉन प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन, कभी कभी हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को अवॉइड भी करते हैं। एज वेल एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी शुड फोकस ऑन द अपकमिंग लॉसेस, यानी एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, बट वी डू नॉट क्रिएट एनी प्रोविजन अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। मीन्स प्रॉफिट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो रिसीव ना हो जाए, और लॉसेस को तब भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए चाहे लॉस हो या ना हो। मीन्स फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी से बुक कर लेना चाहिए। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द प्रोविजन। So the next topic of this chapter, that is reserve. So you can see that what is provision, what are the different example of the provision, as well as what are the feature of the provision. Now we will move to the next topic of this chapter, that is reserve. प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोविजन मीन्स अमाउंट सेट असाइड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग नोन लायबिलिटी whose amount cannot be ascertained, but reserve as are referred to as the amount set aside from the profit and retained in the business to provide for a certain future needs like growth and expansion or to meet future contingencies। मीन्स रिजर्व का मतलब ये होता है कोई भी अमाउंट जिसे हम प्रॉफिट से कलेक्ट करते हैं, यानी जो बिजनेस हर साल प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रॉफिट में से वो हर साल क्या करता है, रिजर्व क्रिएट करता है। इट मीन्स पैसा जुटाता है, मनी कलेक्ट करता है इन द बिजनेस टू प्रोवाइड अ सर्टेन फ्यूचर नीड्स। यू नो वेरी वेल बिजनेस की नीड क्या होती है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक, यानी वो फ्यूचर में उसकी नीड क्या है कि बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है। तो बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपेंड करने के लिए या कुछ फ्यूचर में कुछ कॉन्टीजेंसीज हैं, कॉन्टीजेंसी मतलब अनएक्सपेक्टेंसी, कुछ चीजें अनसर्टेन है, उसके लिए पैसा भी जुटा के रखना, दैट इज रिजर्व। सो इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से व्हाट इज रिजर्व, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम profits to meet the uncertain liabilities as well as for certain future needs, such certain future needs of business, like
growth and expansion. So what is reserve? Reserve means amount set aside, यानी कोई पैसा जो हम जुटा के रखते हैं कहाँ से? From profits to meet the uncertain liability, किसी भी uncertain liability, यहाँ देख लो प्रोविजन में क्या था? Liability certain थी, but reserve में liability certain नहीं है, uncertain liability as well as for certain future needs. कुछ certain future needs भी होती हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए ग्रो करना, बिजनेस को ग्रोथ करना और एक्सपेंड करना. So this is the basic definition of reserve. What is reserve? Amount set aside from the profit to meet the uncertain liabilities as well as for certain future needs like growth and expansion. So now we will move to the next topic of reserve. So you can see that the different example of reserve, that is a general reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund, capital reserve and dividend equalization reserve. So reserve means कोई भी ऐसा पैसा जो हमें अपने प्रॉफिट से अरेंज करके रखते हैं, फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोवाइडिंग अ सर्टेन फ्यूचर नीड्स लाइक अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज वेल एज टू मीट अ अनसर्टेन लाइबिलिटीज. और उसके कुछ एग्जांपल यू कैन सी दैट जनरल रिजर्व, जनरल पर्पस के लिए अगर हम पैसा जुटा के रखते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई भी फंड जो हम वर्कमैन को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट करते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यू नो वेरी वेल, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होती है फ्लक्चुएट होती है, अप्स एंड डाउन्स होती है. तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज को के फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने पास रिजर्व बना कर रखते हैं. कैपिटल रिजर्व, बिजनेस में जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स होती हैं, लाइक अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द लैंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. तो उससे जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से हम लोग कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं. एज वेल एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कंपनी डिविडेंड के रेट को इक्वल करने के लिए. व्हाट इज डिविडेंड? प्रॉफिट ऑन शेयर. अगर कंपनी का कोई शेयर खरीदता है तो शेयर के बदले कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है? प्रॉफिट देती है. सो प्रॉफिट का रेट, इट मीन्स डिविडेंड का रेट इक्वल रहे, अप्स एंड डाउन्स ना रहे, जिससे कि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे. शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, उसके लिए भी एक रिजर्व क्रिएट करती है. सो फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक related to the dividend related to the reserve are as follows. अगर हम रिजर्व्स के फीचर्स की बात करें या रिजर्व की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो ये हैं. सो बेसिकली व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व मीन्स amount set aside from profit to meet the uncertain liability as well as for certain future needs like growth and expansion. And for the example of reserve, general reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund, capital reserve and dividend equalization reserve. Now we will talk about the few important features related to the reserve. That is, reserve are not a charge against profit. ये बात याद रखिएगा, रिजर्व बनाना कंपल्सरी नहीं होता है, बट देयर आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट मीन्स रिजर्व बनाना कंपल्सरी नहीं होता है, यानी रिजर्व हम तभी बनाते हैं जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो. इफ कंपनी हैज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी मेक अ रिजर्व. इट मीन्स जैसे प्रोविजन बनाना कंपल्सरी था, प्रोविजन बनाना ही बनाना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. बट रिजर्व हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है. सो दैट्स वाई रिजर्व आर नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. The next and very important part related to this topic, that is, reserve strengthen the financial position of the business. However, retention of profit in the form of reserve reduce the amount of profit available for distribution among the owner of the business. रिजर्व जो होता है किसी भी बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अगर बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को हमें स्ट्रेंथ देना है, उसके अंदर कह सकते हो कि उसमें पॉजिटिविटी लानी है, सो वी कैन मेक अ रिजर्व. जैसे आप अपने घर में देखो, मम्मी पापा या पेरेंट्स अपनी इनकम का कुछ पैसा सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो उस अनसर्टेनिटीज़ को हम फेस कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ रिजर्व वी कैन ईजिली फेस द अनसर्टेनिटी in the future, and we can also focus on the certain future needs like a growth and expansion. So especially reserve बनाना financial position के लिए strength की बात होती है, but
अगर हम बात करें, अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बनाती है तो इस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को या ओनर्स के लिए पैसे कम बचते हैं। वही बात हो गई कि हम आज अभी के बारे में सोच लें या फ्यूचर के बारे में सोच लें। अगर कोई कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती है, फ्यूचर के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचती है, तो सिचुएशन पे वो रिजर्व क्रिएशन पे ज़्यादा बिलीव रखती है। सो यू कैन सी दैट द फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू द reserve. The first one is a reserve means the amount aside from profit to meet the uncertain liability as well as for certain future needs like growth and expansion. The few features of the reserve are, the first one, reserve are not charged against profit, it is an appropriation out of profit. Number 2, reserve provide the strength to the financial position. Number 3, reserve reduce the amount of profit available for distribution among the owners of the business. And one more important things of reserve is reserve can be created out of revenue profit or the general profit or the capital profit. यानी provision generally revenue profit से ही बनता है, यानी profit and loss से ही बनता है, but reserve can be make out of the revenue profit. It means day to day से हम जो profit earn कर रहे हैं उससे भी हम रिजर्व बना सकते हैं, एज वेल एज रिजर्व कैन बी मेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. इट मीन्स अगर हम किसी एसेट्स को सेल किया उस पर प्रॉफिट अर्न हो गया, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल किया उससे कोई प्रॉफिट अर्न हो गया, तो उससे भी जो प्रॉफिट मिलता है उससे भी हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ टूडेज वीडियो लेट्स वी टेक द few important terms, few important description related to the provision in reserve. So you can see that if we are talking about the provision, so provision are amount set aside out of profit to meet a known liability. It means provision हम लोग किसके लिए provide करते हैं? To meet a known liability. It means the liability of provision is fixed, but amount cannot be uncertain, यानी उसका amount हम लोग certain नहीं कर सकते. So the first point related to provision, provision is created for the known liability as well as amount cannot be uncertain. The second part related to the provision is that, third part, provision is created out of revenue profit. It means जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हम कहाँ से प्रोविजन क्रिएट करते हैं? थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं प्रोविजन. एंड नंबर 4, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट मीन्स प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. यानी द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज कंपलसरी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. बट when we are talking about the reserve, so we can see that the different thing related to the provision, different thing related to the reserve, that is number 1, it is created for the future needs, not a liability. जो बिजनेस की नीड होती है उसके लिए क्रिएट होता है, sometimes for the growth and expansion, and it is created also for the unknown liability. Generally if you are talking about the general reserve, तो general reserve हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? हम जनरल चीज़ों के लिए क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में अगर अब ये देखने को मिल जाए, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी चीज़ों को देखने को मिल जाए कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं. एज वेल एज द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द रिजर्व, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल प्रॉफिट. यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व, तो रिजर्व हम रेवेन्यू प्रॉफिट से भी क्रिएट कर सकते हैं और कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व. If we create the reserve out of revenue profit, it is called revenue reserve. If we are created reserve out of capital profit, it is known as the capital reserve. And number 4, and the last point related to this topic, is that reserve is, it is an
creation out of profit। इट मीन्स रिजर्व का जो क्रिएशन है वो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मीन्स रिजर्व का क्रिएशन जो होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट बिजनेस के पास है तो वो रिजर्व बनाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो रिजर्व नहीं बनाएगी। सो बेसिकली कह सकते हो दीज आर द समरी ऑफ द प्रोविजन एंड रिजर्व, and by the help of these features of the provision reserve we can easily differentiate between the provision and reserve easily. So please note down these things in your copy, okay? So I hope today we cleared all the topics very easily। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।